Okay. In yesterday class, I have asked the one question like, if there is a decrease in size along the period, then there is a decrease is by more extent in case of main group element and less extent in case of the transition element. So you can explain this one by using the Slater rules. आप Slater rule का use करके आप इसको explain कर सकते हो, right? जैसे कि if in case of the main group element, since outer electron is filled in the orbital with same value of n, मीन्स उसका जो सेल है वो सेम ही है, जैसे 2s है 2p है, इस वे में ही वो फिलिंग आपकी होती है, राइट। और जैसे जैसे आप यू आर मूविंग इन द पीरियड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, राइट, so your z value is increasing, atomic number is increased by 1, 1 के गैप पे इंक्रीज होता है, राइट। एंड ईच स्टेप यू विल सी देयर इज ए इंक्रीज ऑफ सिग्मा वैल्यू इंक्रीज बाय 0.35, आप 0.35 से ही मल्टीप्लाई करते हो, राइट। सो एज पर द स्लाटर एट ईच स्टेप जेड स्टार विल be increased by 0.65, means z star z minus sigma 1 minus 0.35, so it will increase by 0.65. Like if you are taking 1s1 2 2s1, then electron is going into 2s1 and then 2, then 1s2 2s2, and the same means cell 2p1. so this n value will be same, right, same रहती है आपके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप फिलिंग करते हैं, right. एटॉमिक नंबर 1 1 के गैप पे चेंज हो रहा है, राइट। सो एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एट ईच स्टेप बाय 0.65 in the main group element, right. Now if I will compare this one with the transition element, right, so you can take the example of like scandium, the atomic number is 21, then titanium atomic number is 22, right. So if I am writing the electronic configuration of these two elements, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Right. So in this way you have to fill the electron, right. Now for the 4s, you have to multiply by 0.35. Then in the 3 n value 3, that there n minus 1 cell means you have to multiply, because there are the 9 electron are there, you are multiplying by the 0.85, rest electron you have to multiply by the 1, right. So जो भी आपकी वैल्यू आती है, इफ यू आर कैलकुलेटिंग, इसको कैलकुलेट करके देखना, तो अराउंड ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 17.65 के अराउंड आ जाएगी, राइट। सो जेड स्टार इफ यू आर कैलकुलेटिंग, सो 21 माइनस 17.65, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए आप, ठीक है। सिमिलर वे इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द टाइटेनियम, so 1 electron will increase in the n is equal to 3, right. so वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 into 1 plus 10 into 0.85 plus 1 into 0.35, ठीक है। इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना टाइटेनियम के लिए, साथ साथ कैलकुलेट करते रहो बेटा। इन दोनों को यदि आप कंपेयर करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को निकाल के, यहाँ पे 22 माइनस समथिंग जो भी आपकी वैल्यू आ जाती है, राइट। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे सिग्मा की जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इंक्रीज इज 0.85, राइट। और जेड तो सेम वहां पे जैसे हमारा अपर में इंक्रीज हो रहा था, दैट इज इंक्रीज बाय 1, स्कैनेडियम से टाइटेनियम की तरफ जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर 1 1 यूनिट के गैप पे इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो जेड स्टार जो हमारा आता है, दैट विल बी 1 माइनस 0.85, it is coming around 0.15. Now you can see, and the case of the main group element, the effective nuclear charge is increased by 0.65, and now in case of the transition element it is increased by 0.15, which is having the more extent. मैम मेन ग्रुप एलिमेंट।
group, right? So there is a increase of effective nuclear charge is more in case of the main group element than that of the transition element, right? So in case of transition element, since electron is going into previous cell, right? किसमें जा रहा है? Previous cell में जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, hence the increase of sigma value by 0.85. तो जो सिग्मा की वैल्यू है वो आपकी मतलब शिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट? शिल्डिंग की वजह से जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 0.85, वहां पे ये वैल्यू कम हो रही थी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ही इलेक्ट्रॉन आपका ऐड कर रहे थे। यहाँ पे इनर मींस प्रीवियस सेल में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 3D में ऐड कर रहे हैं, राइट? तो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है वो दैट इज गोइंग टू बी सील्ड अगेन एंड अगेन, राइट? तो इसके अंदर जो वैल्यू है सिग्मा की दैट इज इंक्रीज बाय मींस 0.85, राइट? इन केस ऑफ द यदि हम उसमें देखें इन केस ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट, वहां पर जो थी 0.35 थी, राइट? So now you can say that therefore in the main group element Z star will be increased by 0.65, and in case of transition element Z star is increased by 0.15, right? So मैंने एक क्वेश्चन ये भी किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी किया था, right? So less in case of transition element, extent of increase is less, right? Therefore decrease in size is by less extent. तो यहाँ पे decrease size का decrease भी less extent है than that of the main group element, and increase in ionization energy also the less extent. जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको किए थे वो सारे के सारे यहीं से आंसर आ जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का, साइज का, ट्रांजिशन एलिमेंट आप देखते हो ना, इसमें बहुत ही कम डिक्रीज होता है साइज में भी, आयनाइजेशन एनर्जी में भी, राइट? तो ये सारे आंसर जो है आपके स्लैटर रूल से ही आते हैं, ठीक है? अब जब भी कोई हमारी थ्योरी आती है या कोई रूल आता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, तो हमारे स्लैटर मैम रूल की भी कुछ लिमिट। हाँ बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसका साइज तो ज्यादा बढ़ना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो बेटा साइज डिक्रीज होता है। नहीं मैम, इन कंपैरिजन टू द मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए? मैम अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसका साइज रैपिडली बढ़ना चाहिए ना। इन द ग्रुप ना, यस मैम। इन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इनर सेल, राइट? प्रीवियस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, राइट? तो वो क्या कर रहा है, उसको शिल्डिंग कर रहा है, ठीक है? अब शिल्डिंग जो कर रहा है, अब आप फर्स्ट ग्रुप से जब सेकंड ग्रुप पे जाते हैं तो इंक्रीज करता है, लेकिन वहां पे और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। जैसे जैसे आप थर्ड सेल में जाएंगे तो आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, देन एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वो भी आ जाते हैं साथ में। दूसरे मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम खाली एक ही प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे, हम दूसरी चीजें भी देखेंगे फिर, ठीक है बेटा? ओके मैम, और मैम फिलिंग हाँ ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी देखेंगे कि वो कम शील्डिंग हाँ। कर पाती है। हम्म। और ये अभी ओके। पेनिट्रेशन, ये क्योंकि कुछ लिमिटेशंस भी इसकी स्लैटर रूल की आ जाती है हमारे पास। जैसे लिमिटेशन यदि मैं देखूं ऑफ स्लैटर रूल, तो क्या है? फर्स्ट थिंग, राइट? अब स्लैटर रूल क्या बोलता है कि आपके जो भी हायर ऑर्बिटल्स हैं वो जीरो शिल्डिंग कॉज करेंगे, राइट? यही बोलते हैं ना स्लैटर रूल। लेकिन यदि हायर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो दे कैन पेनिट्रेट, राइट? पेनिट्रेट तो कर ही सकते हैं ना, वो जो हम पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ते हैं इनटू द इनर ऑर्बिटल, राइट? लेकिन वो स्लैटर ने उन चीजों को जीरो मान के चला है वो, राइट? सो अकॉर्डिंग टू स्लैटर, all higher orbital cause shielding equal to zero, right? But even the higher orbital can penetrate into the inner orbital, right? Second thing,
यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एस जो है ज्यादा पेनिट्रेट करता है देन दैट ऑफ द पी, और उसने क्या किया, एस और पी को एक ही ग्रुप में डाल दिया, राइट। हम जब पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हम बोल रहे थे एस का इफेक्ट ज्यादा है, एस की सिल्डिंग ज्यादा है, एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन स्लाटर ने क्या किया, दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया, राइट। सिंस एस penetrate more and they have more inner peaks, जो मैं जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने बोला था एस जो ऑर्बिटल है दे हैविंग द मोर इनर पीक्स, राइट। सो दे हैव द मोर इनर पीक्स देन p orbital. Therefore as screening of s has more effect, मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इसका एस का ज्यादा है, राइट। बट Slater has put them S and P together, क्योंकि जब दोनों का इफेक्ट ही डिफरेंट है तो वो एक साथ उनको नहीं रख सकता था। थर्ड थिंग, अब जब हम सारी चीजें देख रहे हैं तो एस का इफेक्ट अलग होता है, पी का अलग होता है, डी का अलग होता है, एफ का अलग होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सभी का अलग अलग है होता है, राइट। अब उसने क्या किया, जब 4s के लिए निकाल रहा है या डी ऑर्बिटल के लिए निकाल रहा है तो एक बार वो क्या कर रहा है, एस पी डी एफ जितने भी सबको एक साथ लेके चल रहा है, राइट। सो द स्क्रीनिंग by inner electron irrespective of fact whether they are S, P, D or F has been taken to be same. Strong. My voice is coming, beta? Yes, ma'am. Hello. Okay. Voice break is there? No, ma'am. Yes, Okay. ma'am, for clear. some time. Okay, okay. ठीक है, यहाँ तक ओके ओके। नाउ दिस इज अबाउट द स्लाटर रूल्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. Now we should take the shapes of the different orbitals. Okay. For this one we should go into the deep into the atomic structure, जो हमने atomic structure पढ़ा था उसी में ही from after the shapes we having the different principles and then orthogonal principle, Hund's rules and these all, right. So हम ये थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं shapes के लिए। into the atomic structure we have seen, हाँ बेटा। Ma'am, please open first point. Okay, ma'am. Thank you. Okay. For explaining about the shape of the orbital, right. So into the atomic spectra we have seen, atomic structure we have seen, your wave function is depending on the R and A, right. And R is R and A theta and phi, right. So in the angular part, जो हमारा angular part है, part of wave आपकी function, वॉइस ब्रेक हो रहा है। सभी जगह पे ब्रेक हो रहा है, सभी को ब्रेक हो रही है बेटा? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। No, ma'am. सही आ रही है।
Okay. Maybe 1 or 2 minutes this will fluctuate, otherwise this will come clear. Okay. Okay. Angular part यदि हम देखें, angular part of wave function, this is involving theta and phi. जो एंगुलर पार्ट है उसमें थीटा और फाई हमारा इन्वॉल्व होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, वो एन पे डिपेंड नहीं करता है, राइट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, राइट. सो व्हाट ए विल टेल, ए जो पार्ट है एंगुलर पार्ट जो है, इट विल टेल अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपको ए जो है बताएगा, राइट. इट टेल्स द डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ये डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आपका इलेक्ट्रॉन का, राइट, नॉट द रेडियल, राइट, distribution. That's why it tell about the shape of orbital where there is maximum probability of finding the electron. Okay. अब now we will see the different shapes after from the angular wave function. ठीक है, जैसे in this one if s orbital is there, so in that one no nodal plane will be there, right, like L value is 0, right, for n is equal to 1 के लिए L is equal to 0 and m is equal to 0, right. L is equal to 1 है तो m is equal to आपका +1 0 and -1 रहता है, right, for s orbital मान लीजिए हमने ले लिया है. ठीक है, तो इसमें यदि स्टार्टिंग में हम देखें तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं रहेगा, राइट. जब भी हम कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, व्हाई s orbital is spherically symmetrical. तो ये कई बार एग्जाम में बहुत बार आता है. ठीक है, so your angular wave function you can say of the s orbital, यदि हम angular wave function देखें, function of s orbital does not involve theta and phi, right. So always your s orbital is spherical symmetrical, right, because this is not having any angle theta and phi, right. यदि हम L is equal to 0 and m is equal to 0 है, so for s orbital your wave function will be equal to 4 pi, right, 1 over root 4 pi, right, या आप ऐसे भी लिख के बता सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये जो है ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, राइट. L is equal to 1 यदि आ गया, यदि p ऑर्बिटल है तो m is equal to +1 0 and -1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. मैम ये कैसे आ तो ये जाती है? ये जो है हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी वेव फंक्शन है उसको जब हम सोल्व कर देते हैं, सॉल्यूशन जब देखते हैं वेव फंक्शन के लिए, ठीक है, उसमें जब हम देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल जो टर्म्स थी उसको जब पूरा सोल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सब कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है एंगुलर पार्ट में वेव फंक्शन की या रेडियल पार्ट में भी, आपने देखा मैंने 1-2 जगह लिखा भी था शायद, तो उसमें आपने देखा कि उसके अंदर कोई भी एंगल नहीं है. आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा स्फेरिकल सिमेट्रिकल है तो आपको बस ये ही वैल्यू लिखनी है
और दैट इज डजंट इन्वॉल्व थीटा एंड फाई, वो लिखना है 2-3 लाइंस के अंदर आप इसको बता देंगे। ये L इज इक्वल टू 0 है, M इज इक्वल टू 0 है। फॉर S ऑर्बिटल द वेव फंक्शन वैल्यू इज 1/√4 पाई, राइट, ये वैल्यू होती है। इन दिस रिलेशन देयर इज नो एंगल थीटा एंड फाई, दैट्स व्हाई S ऑर्बिटल एंगुलर वेव फंक्शन S ऑर्बिटल डजंट इन्वॉल्व थीटा एंड फाई। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम ऊपर फॉर्मूला लिखा है 1/4 पाई और नीचे 1/4 पाई टू द पावर, अच्छा रूट हट गया। वही ओके है ओके बेटा, वो मैंने जस्ट लिख के ओके बताया, ओके दोनों तरीके से कैसे भी तुम्हें बुक्स में मिल सकता है। ठीक ओके है? हम्म। यस मैम ओके। अब इसी के ही मैं वेव फंक्शन जो है p ऑर्बिटल के लिए भी आपको लिख देती हूँ। ठीक है? यदि मैं p ऑर्बिटल के लिए देखूं, L इज इक्वल टू 1 जैसे मैंने लिखा, तो यू हैविंग द 3 वैल्यू ऑफ m 0 1 +1 एंड -1, राइट? सो you can say -1 for the py and 0 for the your pz orbital and for the +1 for the px। ठीक है? आप चेंज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है? And so that value, if pz orbital is there, so wave function value is coming 3/4 pi रूट है ये cos थीटा। यदि हम px के लिए देखें 3/4 pi 1/2 sin theta cos phi। For py that value is 3/4 pi 1/2 sin theta sin phi। So in this one you can see there is a angle dependency is there, right? So this py p they are depending on the angle, right? कई बार एग्जाम में आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है? यू हैव टू ड्रॉ द ऑर्बिटल्स, राइट? तो हमारे पास 2 थिंग्स होती है, एक तो एंगुलर पार्ट की फॉर्म में p ऑर्बिटल को ड्रॉ करना, या सिंपली दे कैन आस्क यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ द p ऑर्बिटल। ठीक है? 2 चीजें आपसे पूछ लेते हैं। जब भी हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो देयर आर द 2 स्फीयर्स which are touching each other, right? वो जो आपस में टच कर रहे होते हैं, right? And tangentially to the xy axis, and if you are seeing these 2 lobes they having the opposite sign। इसके अंदर प्लस साइन होगा एक लोब में नेगेटिव साइन होता है, राइट? सो कई बार पूछ लेते हैं आपसे, यू हैव टू ड्रॉ देयर एंगुलर पार्ट, राइट? एंगुलर पार्ट को ड्रॉ करने के लिए बोल देते हैं यू हैव टू ड्रॉ द एंगुलर पार्ट ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक है? जब भी आपसे एंगुलर पार्ट ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, so for the pz orbital, px and py orbital you have to make the lines, you have to make 2 lobes for the pz orbital के लिए मैं बना रही हूँ, right? So this is y x and z orbital, z axis, there is a plus sign, there is a minus sign। so ये pz orbital के लिए, right? हमें दोनों लोब में अपोजिट साइंस रहेंगे। ठीक है? यदि py है and then px। ठीक है? माइनस एंड प्लस, दिस y, दिस x, z। एक्सक्यूज मी मैम। सिमिलर वेव। हाँ जी बेटा। मैम आपने ऊपर लिखा है कि हम m की वैल्यू +1 0 और -1 किसी को भी px py pz दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या इनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी वेव फंक्शन की? हाँ, वो जो आप मान लो pz दे रहे हो, राइट? तो इसके अंदर जो वैल्यू आप फीड कर रहे हैं m, इसके अंदर क्या है, आप pz जब भी मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है उसमें किसी को भी देने का मतलब क्या है, m की वैल्यू तो pz के लिए हमेशा 0 ही आप फीड करते हो ऑलमोस्ट। ठीक है? pz मान लीजिए आप इस एक्सिस को चेंज कर दो, राइट? pz हम किसी दूसरे को मान ले, तब वो जो चीजें हैं वो चेंज हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं you have to draw the axis on the x y plane, you have to draw the lobes in the x z plane। तो आपको उस वे में देखकर ही उसको ड्रॉ करना है।
ठीक है। ओके ऐसे मैम। मतलब जैसे अब मैंने इसके अंदर जैसे पी जेड को मैंने लाइन जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे कर दिया। यदि मैं जेड एक्सिस को एक्स की जगह पे मान लूं तो वहां पे जेड लिख दूंगी, राइट। वो आपके ऊपर है, आप कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। जैसे मैंने ये लास्ट में वाई भी ऐसे लिखा और एक्स को भी ऐसे ही लिख दिया। जो मैंने सेम, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, in this py and px I have taken the two things on the same axis। सेम एक्सिस पे है, डिफरेंट एक्सिस है बेटा, बता दो एक बारी। मेरी मैम आवाज, सेम एक्सिस है, एक्स एंड बाय। एक्स एंड वाई है, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, जब मुझे एक्स बनाना था तो मैंने जिस एक्सिस पे लॉब्स बनाई है उसको एक्स बना लिया है। अब इसमें पी वाई में जिसको मुझे वाई जहाँ पे लॉब्स बनानी थी तो मैंने उसको वाई बना लिया है। तो आपको ये जो एक्सिस का जो ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई और जेड है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यस मैम। है ना। यस मैम आप मैम। अब जो क्वेश्चन बता रहे थे प्लीज वो दे के समझा दीजिएगा। कौन से वाला बेटा? मैम जो आप अभी कह रहे थे कि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रॉ हाँ द हाँ हाँ, ठीक है। डायग्राम ऑफ द पी ऑर्बिटल्स इन द एक्स वाई प्लेन। हाँ, मैंने क्योंकि ये शायद लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार आया था वो क्वेश्चन। उसमें क्या किया था उन्होंने, उन्होंने एक्सिस डिफाइन कर दी थी कि आपको प्लेन में कौन सी एक्सिस लेनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। जैसे मैंने पी जेड बनाया, राइट। अब मैंने जेड एक्सिस को अपर मतलब ऐसे लाइन को अपर साइड में ले लिया। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर दिखाना हो जेड एक्सिस, तो आपको उस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा जहां पे मैं वाई दिखा रही हूँ। वहां पे जेड बना के फिर मेरे को लॉब्स को वहां बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। ठीक है ना। जो भी आप एक्सिस लेंगे, आप जो लिख रहे हैं वो आप दिखाएंगे, ठीक है। यदि आप पी एक्स बता रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे ही लोब्स बताएंगे, ठीक है। यदि पी वाई बता रहे हैं तो वाई एक्सिस पे ही लोब बताएंगे। यदि जेड बता रहे हैं तो जेड एक्सिस पे ही लोब आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आप बना दो। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है। अब नाउ ये तो था एंगुलर पार्ट को आप ड्रॉ करेंगे। यदि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ रहे थे यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर आपको शेप्स ड्रॉ करनी है, तो आपको ये साइन वाइन कुछ नहीं सोचना, ठीक है। आपको इफ दे आर आस्किंग इन द पेपर you have to draw the shape of p orbital, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? सो देयर विल बी फर्स्ट थिंग देयर इज नो साइन, कोई साइन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो साइज स्क्वायर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, राइट। और जब पॉजिटिव रहता है एंड दिस विल बी एलोंगेटेड आल्सो, वो एलोंगेटेड फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? जैसे वहां पे मैंने सर्कल सर्कल में दिखाई है लोब्स को, राइट। तो जब आपसे इस वे में पूछ रहे हैं, शेप्स पूछ रहे हैं, तो आपको एलोंगेटेड फॉर्म में इसको दिखाना होगा। तो दिस इज फॉर द पी, यदि जेड एक्सिस है तो ये पी जेड हो गया हमारा। यदि ये आपकी एक्स एक्सिस है तो पी एक्स हो जाएगा। यदि ये वाई एक्सिस है तो पी वाई हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। तो शेप यस मैम। पूछेंगे तो आपको इस वे में बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं डी ऑर्बिटल के लिए करना चाहूँ तो उसके लिए एल इज इक्वल टू 2 है। एम की वैल्यू आपकी होगी -2 -1 0 +1 +2, राइट। सो you all know I think d orbital existing in the two groups T2g and EG. T2g, in that one T is the triple, so this is the triply D generate,
and E is the EG is the doubly degenerate. Right. 5 orbitals. So there are the 5 orbitals in case of the D, right? तो हमारे पास 5 orbitals इसमें D के लिए हम 5 orbitals हमारे बनाते हैं, right? And in this case there will be the 4 lobes. इसमें 4 lobes आपकी रहती है and they will be a little more elongated. ठीक है, वो थोड़ी elongated रहती है. ठीक है, तो आपका T2G जो है DXY, DYZ एंड DZX. ठीक है, सो लॉब्स जो T2G की जब हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ T2G योर लॉब्स विल बी इन बिटवीन द एक्सिस. ये एक्सिस के बिटवीन में रहती है. ठीक है, जैसे कि मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. एंगुलर पार्ट में ड्रॉ कर रही हूँ अभी. तो इसमें क्या होता है, जैसे उस पे अपोजिट लोब का डिफरेंट साइन है. डी ऑर्बिटल में क्या होता है, आपका अपोजिट लोब हैविंग द सेम साइन का रहता है. ठीक है, ये T2G के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये थोड़ा अलोंगेटेड फॉर्म में दिखाएंगे इसको उसमें नहीं दिखाएंगे हम. ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो अपोजिट लोब दे हैविंग द सेम साइन. तो एक्स एक्सिस. हाँ बेटा. मैम इसमें हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे लोब्स को? ज्वाइन करना है कर लो, वो आपके ऊपर है. मैंने तो जस्ट आपको बताया ताकि आपको एक बार ढंग से पता चल जाए. ठीक है, ओके मैम. ये थोड़ा एलोंगेटेड फॉर्म में आप बताएंगे. बीच में आपका नोडल प्लेन है. ठीक है, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस. सो वाई जेड, जब वाई जेड प्लेन में कर रही हूँ तो दिस इज दी वाई जेड. अब एक्स जेड के लिए एक्स एंड दिस इज द जेड. प्लस प्लस माइनस माइनस डी एक्स जेड. ठीक है, सिमिलर वे में दीज आर द T2G ऑर्बिटल. ठीक है, अब EG की बात करें तो हम EG के लिए क्या होता है, लोब्स विल बी ऑन द एक्सिस. ठीक है, जैसे कि आपकी आ जाती है DX² माइनस Y² एंड DZ². राइट, इनमें नोडल प्लेन रहता है सभी में. आप सभी को पता है नोडल प्लेन का क्या मतलब होता है. देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन. there is no distribution of electrons. ठीक है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इलेक्ट्रॉन का नहीं रहता है. सो इन दिस वन लाइक L की वैल्यू जो आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है. राइट, तो L की जो वैल्यू है 0 का मतलब S ऑर्बिटल है, उसमें 0 नोडल प्लेन रहते हैं. P ऑर्बिटल जो रहता है उसमें 1 नोडल प्लेन रहता है. राइट, D ऑर्बिटल की जब हम बात करते हैं देयर आर द 2 नोडल प्लेन. राइट, अब D ऑर्बिटल की बात करें उसमें 2 नोडल प्लेन्स है. राइट, अब इन द एग्जाम दे कैन आस्क द यू हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ D ऑर्बिटल. तो आपको कैसे ड्रॉ करनी है, सिमिलर जैसे हमने P ऑर्बिटल की थी. वहां पे नो साइन, कोई साइन नहीं रहेगा. एंड दिस विल बी लिटिल मोर एलोंगेटेड. ठीक है, गुड डायरेक्शन में पॉजिटिव हो गई है आपकी जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है. तो आप इसी वे में इसको दिखाएंगे. T2G का मैं बना रही हूँ पहले, इसको मैं ज्वाइन करके बता रही हूँ. ठीक है, एक्स वाई जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. अब यहाँ पे हर जगह एक्स वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें DXY बनाना है, DYZ बनाना है और DZX बनाना है. ठीक है,
तो इसके लिए हम एक्स जेड यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे वाई जेड लिखेंगे। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो आपको ये जो एक्सिस है वो करेक्ट लिखनी है हमेशा। एक हम बोलते हैं जी, हम लिख रहे हैं T2G लिख रहे हैं, P के अंदर हम U लिखते हैं, राइट, P ऑर्बिटल के लिए। तो जो G का मतलब होता है जेरेड और U का मतलब होता है अनजेरेड। T2G और EG जो लिख रहे हैं उसमें G का मतलब जेरेड होता है, P के लिए हम जो है U का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे उसी सेम पॉइंट पे, अपोजिट पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, राइट। Means we start from the one point, go to the opposite point and passing through the center. हम सेंटर से पास करते हुए जाएंगे and the sign will be same sign रहेगा, इसलिए D को हमें always we are writing the G, जेरेड मतलब सिमेट्रिकल है वो, राइट। अनजेरेड मतलब P ऑर्बिटल के अंदर हम प्लस साइन से स्टार्ट किया था, माइनस पे पहुंच गए हैं, राइट। तो मीन सिमेट्री चेंज हो गई है, ठीक है। अब नाउ इजी ऑर्बिटल के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास टू ऑर्बिटल्स थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी यदि हमारे पास ये प्लस माइनस का साइन हम यूज कर रहे हैं, एंगुलर पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम सिमिलर वे में ऐसे ही बताएंगे। यहाँ पे हम ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, मोस्टली केसेस में। मतलब जैसे जेड बता रहे हैं, डी जेड स्क्वायर बता रहे हैं, तो वहां पे ज्वाइन करके बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक प्लेनर रिंग भी रहती है, राइट। और सभी केसेस में मैं ज्वाइन करके नहीं बता रही हूँ, ठीक है, आप भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सभी बुक्स ने अपना अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। ये डी जेड स्क्वायर है प्लस प्लस एक रिंग रहता है इसमें, दिस इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एक्स जेड, और ये जो नेक्स्ट लाइन है दिस इज द वाई। सो ये जो रिंग जो है रहता है इसमें डी जेड स्क्वायर में, जो रिंग रहता है ये जो है एक्स वाई प्लेन में रहता है, ठीक है। These orbitals are getting from the y square minus z square and z square minus y square के combination से बनते हैं, right, y square minus z square and dz square minus x square, right। क्योंकि हम जो d ऑर्बिटल में पढ़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं 5 ऑर्बिटल्स है, सो ये जो दो ऑर्बिटल्स जो हैं, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड वी गेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द जेड एक्सिस। आपको जेड एक्सिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, राइट। तो जो आप डी जेड स्क्वायर की बात कर रहे हो, राइट, तो ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करके हमें डी जेड स्क्वायर बना देता है, ठीक है। Now in the exam they can ask about the you have to draw the shape of the dx square minus y square and dz square, तो similar way में आप इसको ड्रॉ कर देंगे। ये थोड़ा इधर हो गया, आप सही बना लेना। एक्स जेड एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इस वे में आप जो है इनको बनाएंगे, ठीक है। यदि मैं एफ ऑर्बिटल को देखूं, L value is 3, so ML value is +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, राइट। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करते ही हैं 2l+1, तो यहाँ पर हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब इन केस ऑफ दी 7 ऑर्बिटल्स यदि हम देखें, तो इनके अंदर जो f ऑर्बिटल है देयर विल बी द 6 लोब्स, इनमें 6 लोब्स होती है, राइट।
ये ऑर्बिटल्स कौन कौन से एक्सक्यूज हैं? मी मैम। एफ, हाँ जी बेटा। मैम लोब्स का हम्म, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर क्या है, जो ये ऑर्बिटल्स जो हमारे बने हुए हैं, राइट। अब मैंने इसके अंदर बताया, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7 ऑर्बिटल्स है, ठीक है। लॉब्स तो इसके अंदर जो है, इसकी जो लॉब्स, जो आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आप बताएंगे, ठीक है। तो इसकी जो लॉब्स बनी होगी, जैसे हमने अपर वाले में क्या किया, हमने एक्स वाई और जेड को डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस हमने ली, T2G लिया हमने और EG लिया, ठीक है। तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स थे, और जो 5 ऑर्बिटल्स जो थे वो एक्स और वाई और जेड एक्सिस के अंदर हमने बताया था कि T2G जो रहती है इन बिटवीन द एक्सिस रहती है, और जो EG रहती है वो ऑन द एक्सिस रहती है। इन केस ऑफ द एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, in some cases we are taking out the x, जो है x को हम बाहर निकाल लेते हैं, देन वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर करके, और एफ वाई हम निकालेंगे, और देन मीन्स आपके पास एक इस टाइप से एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये बन गया, मीन्स तीनों ही डायरेक्शन में हमारे पास लोब्स आ गई है, तो टोटल लोब्स कितनी हो जाएगी? 6 लोब्स बन जाएगी इसके अंदर। समझ में आया? ओके, यस मैम, यस। ठीक है ना। तो इसके अंदर जब प्रोबेबिलिटी हम बता रहे हैं 3 डायरेक्शन में इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, मींस थोड़ा बहुत ज्यादा डिफ्यूज हो जाते हैं ये वाले ऑर्बिटल्स, राइट। तो अब इसके अंदर एक्स एक्सिस पर भी लोब्स है, वाई एक्सिस पे भी लोब्स है, और जेड एक्सिस पे भी लोब्स है। तो यदि हम एक्स एक्सिस पे देखें तो लोब खाली एक डायरेक्शन में तो होगी नहीं, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जो आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करके बताते हो, राइट। तो इसके अंदर एक्स वाई जेड हो सकती है, यदि मैं देखूं तो एक्स क्यूब भी हो सकती है, वाई क्यूब भी हो सकती है, देन योर जेड क्यूब भी हो सकती है, राइट। यदि मैं ऐसे नहीं लिख के, देर आर द 3 मोर ऑर्बिटल्स आर आल्सो देयर, लाइक एक्स वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, इस वे में भी आपको मिल सकती है। देन वाई में कॉमन ले लेती हूँ, देन एक्स, सॉरी, जेड क्यूब, जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, then third one is the z, so x square minus y square. So there are the 7 orbitals are possible in case of the f orbital, right? तो इतना इनका f ऑर्बिटल के केसेस में आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, क्योंकि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। यदि आपसे शेप पूछ ली जाए, राइट, तो शेप तो आप सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एक्स वाई और जेड एक्सिस दिखाएंगे, ठीक है, एक्सिस बतानी है, और आपसे शेप पूछेंगे तो इसको मोर एलोंगेटेड कर देना आपको, इस वे में आप इसकी लोब्स को बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक्स वाई जेड बना के और आप इसको पूरा बता देंगे। दूसरे केसेस में भी इसके अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है एफ ऑर्बिटल में, तो हम इस लेवल पे कम करते हैं, राइट। अभी जब आप और फर्दर जाएंगे और एडवांस स्टडी में जाएंगे तब वहां पे जाके आएगी, अभी तक आपके जो बीएससी लेवल में आपके डी ऑर्बिटल तक ही आपसे पूछते हैं मोस्टली केसेस में, ठीक है। यदि आपसे अब नाउ सम टाइम दे कैन आस्क कि आपको 3p जो है ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, 3p x ड्रॉ करना है या 3p y ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको नोट्स भी बतानी है उसके अंदर, या उसको प्लेन भी बताना है, ठीक है। तो यदि मैं 3p x को ड्रॉ करना चाहूँ, राइट, सो यू कैन कैलकुलेट द नोट्स, नोट्स कितना आएगा 3p के लिए? 1। 1। 1 नोट आएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंपली यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ, आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक बड़ा सा लोब बनाइए और इसको ऐसे वे में दिखाइए, और जो भी एक्सिस आपको बनानी है, क्योंकि मैं जिस एक्सिस पे बनाऊंगी एक्स एक्सिस होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा 3p x हो जाएगा, ठीक है। इस वे में कभी भी पूछ लेते हैं तो आपको सिंपली ऐसे ड्रॉ करके बताना होगा। इज इट ओके बेटा? यस मैम। मैम। मैम हाँ बेटा। मैम ये फोर मैम पी एक एक्स के लिए भी ऐसे ही बनेगा? हाँ सेम ही बनेगा, बस नोट्स आपको देखना पड़ेगा। यदि वो बोलता है ओके 2 मैम। नोट्स है, ठीक है ना, तो बीच में एक एक जगह पे गैप दिखा के, बीच में लाइन वगैरह दिखा के ना, फिर वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
मैम नोट्स का हम्म बता दीजिए एक बार कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये नोट्स वही नोट्स, हैं जो हमने ग्राफ्स में बनाई हाँ थी हाँ क्या? हाँ, n-l-1 वाली, हाँ वही है बेटा। ओके, तो इन्हें ग्राफ्स पर कैसे बनाएंगे मैम, ये इस पार्ट में, जैसे ग्राफ आपने में 4px में बताया अभी? नहीं, ग्राफ तो सेम ही रहेगा जैसे हम बनाते आए हैं, जो आर नहीं और वो मैम, आर। तो ये वाला, ये जिसमें हम शेप बना रहे हैं। हाँ, ये तो सिंपली मैंने बताया, यदि आपसे कोई पूछ लेता है 2p के लिए बनाओ या 3p के लिए बनाओ, तो आपकी रहेगी यहाँ पे एक ही नोड है, बीच का सेंटर आपका नोड आ गया है। तो आप एक बार बुक में ही देखना, आपको जैसे एस ऑर्बिटल के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वो बनाते हो, जैसे सेंटर बन गया ये हमारा, तो यहाँ पे एक हमारा ये बन गया है एस ऑर्बिटल के लिए, देन बीच में गैप दे के सेकेंड ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। इस वे में आप जो है बता देंगे, इसको थोड़ा डार्क कर दो तो आपको बता दोगे पूरा। इस वे में जो है आप पूरा इसको ओके, बता सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ओके इसके मैम, अंदर ओके। भी ये पी ऑर्बिटल के लिए भी आप जैसे एक बनाया हमने, ठीक है, यदि इसको डार्क कर दो, देन यूर सेकंड केस बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपको कैसे दिखाना है, ठीक है। ओके मैम, मैम लेकिन ऐसे जो, इनका इंटरसेक्शन 0 पे करना है, हाँ 0 पे ओरिजिन करेंगे, पर। यदि शेप, हाँ यदि शेप यदि पूछ रहे हैं तो, ओके, ओके। ठीक है ना। हाँ हाँ, थैंक यू मैम। ओके। अब नाउ अब जब हम वेव फंक्शन की बात कर रहे थे कि फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर इज ए यूनिक, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर इज ए यूनिक वेव फंक्शन, ठीक है, जो भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे 3s में है चाहे 4s में है, राइट, उनके लिए उनका वेव फंक्शन दैट इज डिफरेंट, राइट। और हर एक वेव फंक्शन दे विल फॉलो द ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, राइट, ऑर्थोगोनलिटी रूल को फॉलो करते हैं कि यदि एक वेव फंक्शन यदि किसी इलेक्ट्रॉन का है और दूसरा वेव फंक्शन दूसरे इलेक्ट्रॉन का है, इफ यू आर टेकिंग देयर प्रोडक्ट, राइट, सो दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल आएगा, दैट इज द ऑर्थोगोनलिटी टर्म, राइट। सो वन वेव फंक्शन, आप एक ही वेव फंक्शन से यू कैन नॉट डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अनदर वेव फंक्शन, तो इसलिए आप एक वेव फंक्शन को जो है दूसरे वेव फंक्शन से कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। मैं समझ में आया बेटा मैंने क्या चीज बताया। मान लीजिए एक 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव फंक्शन आ गया psi 1, और यदि आपका 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव फंक्शन है psi 2, right, so we are taking the product of these two wave function and you are doing the integration, differentiation, whatever you are doing, right। तो आप जब इनका दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये that will follow the orthogonality term and the product of these wave function will be equal to zero, वो जीरो के इक्वल हो जाता है, राइट। तो आप एक psi 1 से आप 4s को डिस्क्राइब नहीं कर सकते और psi 2 से आप 1s को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्लियर हुआ बेटा? इज इट ओके? मैम इस मेरा टर्म को आवाज आ रही क्या है? बोलते हैं? ऑर्थोगोनलिटी। ओके। मैंने जब मैं आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस बता रही थी, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मैंने बताया था, वहां पे मैंने ये टर्म्स यूज की थी, एक तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। Normalize means when you are taking the product of a wave function that should be equal to 1, right, or if you are taking the different wave function and their product will be 0, तो इस केस में 0 होता है, इस केस में 1 होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दे तो that wave function will be orthonormal। is it okay? यस मैम। अब मैम, now the, हाँ मैम ऑर्थोनॉर्मल में जो इनका इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाया करेगी ना? हाँ हाँ, मीन्स जब कोई वैल्यू ना 1 हो ना 0 हो, 0.25 आ गई है, 0.35 आ गई है, तो उस केस में हम वो बोल देते हैं दैट दैट प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन दैट इज मींस दैट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मलाइज। ओके मैम, ठीक थैंक है, यू। ओके। अब नाउ द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ द these are the Pauli's exclusion rule और Pauli's exclusion principle आपका है, या हुन्स रूल है आपका,
ये आपका एफबी प्रिंसिपल है, तो वो एक बार देख लेते हैं। उसके बेसिस पे फिर हमारा जो था हम बोलते हैं 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है या 3d में पहले आता है, ये सारा चीजें अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। ठीक है, so as per this rule, no two electron in the same atom, the value of four quantum numbers to be same। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, चाहे दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, राइट, एक ही ऑर्बिटल में, तो उनकी सारी चीजें सेम नहीं होगी, राइट, उनके सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे, राइट। ईच इलेक्ट्रॉन इज एक्सक्लूसिव एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट रहेगा। मान लीजिए एन की वैल्यू 1 है, राइट, सो योर एन वैल्यू इज 1, फॉर दिस वन एल इज इक्वल टू 0, m is equal to ml is equal to 0, so s value can be plus half और s value can be minus half। तो s value differ करेगी उस इलेक्ट्रॉन के लिए। so if we fill the electron in any orbital, the maximum number of electron in any orbital is 2, और उनकी जो क्वांटम नंबर्स है, चारों क्वांटम नंबर में से एक ना एक तो डिफर कर ही जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या है इस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का? First thing, at maximum only 2 electron can be filled in one orbital, right? Second thing, also in each of the cell only 2n square total number of electron can be filled, right? Also in each of the cell only 2n square, ये आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते थे, these are the total number of electron can be filled in the main cell। ठीक है, third thing, therefore orbital in the cell, number of orbital in cell, आपके पास फॉर्मूला है इसके लिए भी, तो ये होता है हमारा एन स्क्वायर से आप ऑर्बिटल्स के नंबर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 है या n इज इक्वल टू 3 है, राइट, तो आपके पास मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके हो गए कितने हो जाएंगे बेटा? 9। 9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने फिलिंग होगी? 18 इलेक्ट्रॉन आपके इसके अंदर फिल हो सकते हैं, राइट। तो ये तो आपको शायद +2 में भी आपने पढ़ा है, आई थिंक पढ़ा है ना Yes, बेटा? ma'am. ठीक है, तो आप ऑर्बिटल्स कितने हैं वो आप बता देते हो, और अब सबसेल भी आप बता सकते हो, हाउ मेनी सबसेल्स आर देयर, ऑर्बिटल्स इन ईच सबसेल, उसके लिए आप यूज करते हैं 2l + 1, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द ईच सबसेल, उसके लिए आप 2 × 2l + 1 ये फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करना है आपको। ठीक है, ये तो था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ द हुन्स रूल। मैम प्लीज इसके रिजल्ट एक बार पूरे शो कर दीजिए। ये नाउ इट्स ओके। मैम फर्स्ट वाला नहीं दिख रहा। यस मैम, मैम थोड़ा अब नीचे स्क्रॉल कर दीजिए प्लीज। बस, थैंक यू मैम। Okay, now the Hund's rule. This rule is applicable when we are filling the electron in any subcell। जब आप किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं,
तब हम हुंस रूल को फॉलो करते हैं, राइट। आप बोलते हो ना ईच सबसेल शुड हैविंग द वन वन इलेक्ट्रॉन ईच, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, आप यही बोलते हो, राइट। सो ये हुंस रूल से हमें क्या मिलता है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन वी आर filling the electron in any subcell या सब लेवल, ठीक है। एक चीज और है, जब भी हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, वी शुड फिल द इलेक्ट्रॉन इन द सेम लेवल, एक ही लेवल में, मीन्स उनकी एनर्जी सबकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड की बात करती हूँ, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट, एंड सेम एनर्जी सेम है, so therefore they are equivalent। ये जो सबसेल्स है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। सो दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन वी फिल इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। जब इक्विवेलेंट आ जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, मीन्स इनकी जो एनर्जी है वो सेम है सभी की, ठीक है। सो हुंस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू द एस इलेक्ट्रॉन, इट्स ओनली डीजेनरेट डायरेक्शन, एनर्जी इज सेम। तो ये जो है अपना एप्लीकेबल होता है पी के लिए, डी के लिए और एफ के लिए। एस के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल है, उसमें तो कैसे भी फिलिंग कर लो, पहले फिल करोगे, पहले पहला डालोगे फिर दूसरा डालोगे, ठीक है। सो जो जहां पर भी हम डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स की या इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, वहां पर हमारा जो है हुंस रूल फॉलो होता है, ठीक है। सो आप जब भी फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दैट इज अवॉइडिंग द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को अवॉइड करता है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्या अवॉइड करता है, इलेक्ट्रॉन अवॉइड द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मीन्स आप एकदम से फिलिंग पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को अवॉइड करता है। इस टर्म को जो हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं चार्ज कोरिलेशन। चार्ज कोरिलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन अवॉइड ईच अदर ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जो इलेक्ट्रॉन है आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना क्यों नहीं पसंद करता, ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और इस टर्म को हम क्या बोल देते हैं, चार्ज कोरिलेशन। समझ में आया बेटा चार्ज कोरिलेशन क्या है, यस मैम। राइट। यस सो मैम। अकॉर्डिंग, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस, if there are orbitals of same energy, यदि सभी की सेम एनर्जी है, then electron try to occupy different orbitals, right, rather than pairing in same orbital, क्या। जब पेयरिंग हो जाती है, सो जो पेयरिंग एनर्जी है उसको हम P से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो P की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, हैंस इट इज द डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलते हैं, डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म आ गई है चार्ज कोरिलेशन, जो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करते हैं उसको अवॉइड करती है, तो चार्ज कोरिलेशन वो टर्म है, राइट। सेकेंड हमारे पास आ जाती है पेयरिंग एनर्जी, दैट इज द डीस्टेबलाइजिंग एनर्जी। सो फर्स्ट पार्ट हमारा हुंस रूल का क्या बता देता है, आफ्टर ईच ऑर्बिटल गेट वन इलेक्ट्रॉन ईच, देन पेयरिंग विल स्टार्ट, ठीक है। हुंस रूल का फर्स्ट पार्ट हमें क्या बता देता है, आफ्टर ईच ऑर्बिटल
gets electron, one electron each, then pairing will start. Right. So therefore, whenever electron have to distribute them in degenerate orbital, right? Therefore, whenever electron have to distribute them in degenerate orbital of same sublevel, right? To avoid inter-electronic repulsion. Okay. They occupy different orbitals of same sublevel rather than पेयरिंग. पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सभी सब लेवल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, राइट. हेंस once one electron is filled in different orbital, in same subcell, then pairing will start. Means this is the case or this is the case. ठीक है. So this is the wrong, right? एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे. दिस इज द करेक्ट. और जब वो इन द ईच सबसेल वन वन इलेक्ट्रॉन ईच, तो इसको हम बोल देते हैं दैट इज मूविंग टुवर्ड द चार्ज कोरिलेशन. ठीक है, समझ में आ गया बेटा चार्ज कोरिलेशन क्या है? Yes. सेकेंड थिंग स्पिन कोरिलेशन. Okay. Whenever electron have to distribute themselves in different orbital of same sub level or same subcell, they occupy different orbital. They have same spin. उनकी स्पिन जो होगी वो सेम रहेगी. ठीक है. this cause stabilization of energy. स्टेबलाइज करेगी उस एनर्जी को. एंड this stabilization energy is called exchange energy. इसको हम बोल देते हैं एक्सचेंज एनर्जी. ठीक है.
So energy which is liberated during the exchange of electron, जो एनर्जी एक्सचेंज करने पे रिलीज होती है, दिस इज द एक्सचेंज एनर्जी। एंड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी हम इसको बोल देते हैं। कौन सी एनर्जी है? एनर्जी which is liberated during exchange of electron in same orbital is called stabilization energy। ठीक है, जैसे कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। सो जो ये अब ये each orbital is सब level having the one electron each, तो they can exchange their electron, ये आपस में exchange कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप का पॉसिबिलिटी है, they can exchange 6 टाइम, राइट? 6 exchange can be possible। ये ईच एक्सचेंज पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज अ स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये आपके सिस्टम को स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट? सो एनर्जी ड्यू टू द एक्सचेंज इज नोन एज द स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और दिस एनर्जी इज, ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेयर्स which can exchange। मान लो ज्यादा है तो हम निकाल लेंगे। तो ये एक्सचेंज एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? दैट इज डायरेक्ट नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको बता रही हूँ एक्सचेंज पेयर्स को हमें पता करने के लिए। NC2K। ठीक है, K जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एन जो है that is the number of electron with the same sign, कि वो अप स्पिन में है, डाउन स्पिन में है। तो अप वाले को एक साथ लेना है, डाउन वाले को एक साथ लेना है। ठीक है, तो NC2 कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू N इंटू N-1/2। हम प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं, राइट? जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसी को जब हम पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो मैं वो फॉर्मूला आपको आई विल सेंड यू, ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा है। ठीक है, आपको तो डायरेक्टली एग्जाम में निकालना ही है। So exchange takes place only between the electron with the same spin, right? तो आपको जो सेम स्पिन है उनको देखना है, एंड दिस विल गिव द वैल्यू, राइट? एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू आपको दे देगी। मान लीजिए आपके ये आपका एक ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप क्रोमियम और कॉपर के केस में करते हो, राइट? सो आप क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो सेम स्पिन के हो गए सभी के सभी, तो NC2 आपको निकालना है। तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 10 बेटा। 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सॉरी मल्टीप्लाई 10 आ जाएगी। 5 into 4 सॉरी, 20/2। ठीक है ना? तो 10 आ गया। तो एक्सचेंज एनर्जी हमारी कितनी आ गई? NC2K है, तो दैट इज कमिंग 10K। ठीक है, if there are the like I am taking the example of copper, यदि मैं कॉपर का एग्जांपल ले लूं, एक दो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सचेंज एनर्जी मुझे निकालना है, NC2 मैं निकालूंगी। देयर आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में, 5 इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में। ठीक है, तो सिमिलर वे में 5 इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन में है
MC2 करके मैं निकाल देती हूँ 10। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी एक्सचेंज एनर्जी की, दैट इज 10 + 10, तो दैट इज 20 की हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस वे में आप जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, अब ma'am. now you have to prove, right? What you have to prove? My question is, prove how exactly half filled or exactly fully filled orbitals are stable। आप बताते आए हो, आप बताते थे कि हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, तो उसके अंदर आपका स्टेबलाइजेशन हो गया है, दे हैव फॉलो द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और ये स्टेबलाइज हो गया। ऐसे ही आंसर देते आए हो ना बेटा आप? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, अभी आपको डिटेल में बताना। ठीक है, फर्स्ट थिंग आपके क्वेश्चन में आप बताएंगे हाउ मेनी एक्सचेंज आर देयर। फर्स्ट थिंग तो आप एक्सचेंज एनर्जी निकालेंगे उसके केसेस में। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉपर और क्रोमियम के केसेस में निकाली है। ठीक है, यदि हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, राइट। यदि हाफ फिल्ड है तो कोई पेयर नहीं है उसके अंदर, और फिर हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम जब भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम जो है ये सारे क्राइटेरिया लेंगे इसके अंदर। फर्स्ट थिंग इज पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी जो है डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये तो डिस्टेबलाइज करेगी सिस्टम को। ठीक है, सेकंड थिंग इज द एक्सचेंज एनर्जी, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। थर्ड थिंग इज सिमेट्री, जो आप लोग बताते हैं सिमेट्री, दिस इज स्टेबलाइज द सिस्टम। each orbital if occupied similarly then it is symmetrical। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के बताऊंगी आपको। जैसे कि इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया है, so which is symmetrical? Ma'am, first and last. First and यस last, मैम। तो फर्स्ट they are एंड symmetrical and this is unsymmetrical। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, वो दोनों सिमेट्रिकल है। तो आप जब भी कोई भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप जो है एग्जांपल्स को ड्रॉ करते हुए बताएंगे, राइट। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप जो है पूरा ड्रॉ करके फिर एग्जांपल लेते हुए बताएंगे। इसके अंदर बताएंगे, आपको पता ही है कि मैक्सिमम जो है फर्स्ट ईच ऑर्बिटल शुड हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन ईच, राइट। सो देयरफॉर यू कैन से हायर द 2s+1। ठीक है, 2s+1 जितना हायर होगा, मोर is the stabilization or stability। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, तो अब इसका s जो वैल्यू है, इसका +½ एंड +½ वैल्यू होता है अप स्पिन के लिए। तो मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए s इज समीशन ऑफ s। ठीक है, तो +½ +½ एंड +½ तो दैट इज 3/2। टोटल स्पिन हमारे पास आ गई है s थी, दैट इज 3/2, राइट। So you can say the higher the 2s+1, higher is the spin multiplicity। जितनी high value होगी, high 2s+1, higher is the spin multiplicity। ठीक है,
तो जितनी ज्यादा आपकी 2s+1 होगी उतना ही ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है सिस्टम। तो एस जो वैल्यू है वो टोटल स्पिन को बताता है, राइट। तो 2s+1 जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताता है। ठीक है, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बताता है। सो हायर द वैल्यू ऑफ एस इज पॉसिबल व्हेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम स्पिन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब हाई होगी? जब आपकी एस वैल्यू ज्यादा होगी। एस वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और सेम स्पिन के होंगे, राइट। सो रिजल्टेंट स्पिन को आपको देखना है, रिजल्टेंट ऑफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इन द सेम सेल। ठीक है, तो ये जो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है कि आपके जो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपकी सेल के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से क्या होता है, आपका टोटल स्पिन इंक्रीज हो जाता है। टोटल स्पिन इंक्रीज होने से जो है सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। तो आप ये पूरा उसमें बताएंगे। बेटा समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. can say higher the value of S is possible when more number of electrons have same spin. So S क्या हो गया हमारा? That is the resultant of spin quantum number of different। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम 2s+1 किस चीज की वैल्यू है? 2s+1 जो है एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। जब आप ग्रुप थ्योरी वगैरह आगे पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में, वहां पर इसका यूज आता है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम डिफाइन करने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी या हम आपका जो है ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको एस जो है दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, जो स्पिन को बताता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट स्पिन क्या होगी? जो डिफरेंट सेल्स के अंदर स्पिन है ना, उनको जब ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास टोटल स्पिन आ जाती है। ठीक है, टोटल स्पिन से हमें क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद द सेम स्पिन। ठीक है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे विद द सेम स्पिन मींस सिस्टम इज टोटली स्टेबलाइज। तो आपका हुन्स रूल भी क्या बताता है कि सभी ऑर्बिटल्स के अंदर इंडिविजुअली 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही बताता है ना बेटा? यस मैम। तो ये ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, एक्सप्लेन द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम अगर हमारी फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगी तो वहां पर तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी ना? हाँ, वहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी